ब्रेकफास्ट सुबह के 9 बजे को हो गया था और शायद अभी तक डाइजेस्ट भी हो गया होगा। और फर्स्ट फेज के सेशन के बाद आप सब लोग चार्ज भी हो चुके होंगे। खाने के लिए अभी देरी है 1 घंटे की। एवरी स्पीकर्स हैव गिवन द वंडरफुल इनसाइट्स। और जैसे अरुण जी ने कहा नीरव जी के लिए कि कब कंबल आया और उड़ा दिया गया, यही हमारे साथ भी हुआ। वी गॉट अ वेरी नॉलेजेबल इनसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ कंबल। आज ताली और कल की मैच की ज़्यादा बात हुई। तो फॉर द यस्टरडेज मैच आई होप एवरीवन वुड हैव सीन द इंडिया पाकिस्तान मैच। ताली की भी बात हुई। ताली की गूंज से महफिल सजाए, ताली की गूंज से महफिल सजाए, हर जीत पर दिल खोल कर बजाए। बजाए, ताली बजाए प्लीज। What does HR stands for? जनरली म्यूजिक की दुनिया में HR stands for हिमेश रेशमिया। मूवी में HR stands for ऋतिक रोशन। बट यहाँ पे HR stands for human resource, or rather I would say HR stands for humble resource, because we need to be humble. We are bridging the gap between employer and employee, being humble, and that's why human resource is humble resource. ताली बजाओ भाई। Now for all the dignitaries on and off the dais, one more, कि ताली बजाकर जोश बढ़ाए, क्योंकि अब पैनलिस्ट आने वाले हैं। ताली बजाकर जोश बढ़ाए, 8th नेशनल HR कॉन्क्लेव के माहौल को खुशनुमा बनाए। Now moving further, for this wonderful event, it's a great pleasure for me to introduce today's panelists on the topic transforming HR into a technology-driven function for business efficiency. Very first panelist I would like to introduce is Ms. Pooja Maksana. She is human resource professional having deep interest and passion for making large-scale impact in areas of diversity and inclusion, organization culture, organization development, organization values, employee experience, employee recognition, and talent management. Have independently managed various COE roles and parts of HR business partnering. She holds a master degree in human resource, MBA. But she is also a graduate and black belt in Taekwondo. She is also graduate in the Indian classical dance, Bharatnatyam. Having strong inclination for arts and sports, have worked with Aditya Birla Group, Schindler, and now heads DEI for Sun Pharma. Welcoming Pooja Maksana. Going further ahead, a lady, once we were both together in our one JCI program, it's called a speech craft. Vice President Human Capital Goldie Solar, Human Resource and Business Transformation Evangelist with more than 2 decades of diverse experience spanning in HR, strategy, leadership, development, organizational transformation, and global collaboration, a seasonal professional committed to driving success through innovative solutions. Believe me, we all HR seated here, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, वर्ड्स आए, स्ट्रेटेजी आए, लीडरशिप आए, you all are going on the same path in future कि हमारे बारे में भी कुछ ऐसा बोला जाएगा. She has the key expertise in human resource leadership, global experience, industry versatility, learning and development, strategic initiative, independent directorship, and she has the signature contribution and spearheaded HR and business transformation projects in MNCs, startups, MSMEs, SMEs, and proprietary firms.
designed and implemented a very much necessary for every HR is the behavioral science. So she has implemented behavioral, cognitive and neuro-linguistic programs to foster leadership and innovation. She is TEDx speaker, delivered impactful sessions on innovation, leadership and personal growth. She is author, published 3I Journey to the Third Eye Theory of Success, focusing on imitation, improvement and innovation as pillars of success. Moreover, she believes in Bhagavad Gita and gave her sessions connecting the Bhagavad Gita with the business, with the HR. She is pursuing PhD in Bhagavad Gita. She is the lead auditor, certified trainer, practitioner in NLP, having the professional membership as a chair in entrepreneurship and innovation in YI and CII. She is the national winner for the Effective Public Speaking Regional Best HR Awardee. Her vision is to inspire organizations and individuals to unlock their highest potential through innovation HR strategies. Let us put the hands together to welcome Ms. Asmani Surveji. Moving ahead with another panelist, Ms. Bhavna Kirpal Mittal, CHRO and Head IT Admin and CSR, Hero Future Energies. She leads the HR function at Hero Future Energies. She joined the company at the inception stage and has been part of the growth journey. Let me tell you, it is very important to stick with one company for long years. This will definitely lead you for the more growth, more knowledge in the same company and on the leadership level. She has done the same. She blends the modern day HR practices with traditional Indian value system. She is passionate HR professional driven by results and achievement. She has been providing strategic HR inputs from people perspective to the management and collaborating with the leadership team for strategic alignment. Apart from HR, she also leads administration and IT function along with CSR activities at HFE. Let us welcome Ms. Bhavna. ताली बजाओ, रंग जमाओ, जोश बढ़ाओ, साथ निभाओ. थोड़ी और ताली हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ये मेरे लिए थी. Moving ahead with one more personality, Mr. Sohail Savani. He is a Labor Law Committee Chairman in Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry since 2020. He is a President of RIFA Chamber of Commerce and Industry. He is President of Surat Unit Association of Industries and Institutions, New Delhi. Zonal Coordinator for Gujarat, ESI, PF and Industrial Law Practitioners Association, Mumbai. Active members, SGCCI. Parliamentary representation address. In parliamentary representation, he has addressed labor issues for diamond industry before the Standing Committee of Parliament of Labor and Employment in 2017. Representation before labor ministers is very much essential. Representing employer and employee challenges and ground suggestions on labor codes before Honorable Central Ministers of Labor and Employment, including Shri Santosh Kumar Gangwar, Shri Bhupendra Yadav and Dr. Mansukh Bhai Mandavia, our Minister. He is litigation specialist, handling HR compliances, union matters, disciplinary actions, policies and agreements, audits for 500 plus clients in Pan India. Let us welcome Mr. Sohail Savani.
Though I am not going to call him on the stage, but I would definitely give his introduction again, one of the strong mentor of साउथ गुजरात रीजन आई विल से मैं साउथ गुजरात पे स्टिक नहीं होगा, वो वर्ल्ड लेवल पे फोकस है उनका, वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम लिया जा रहा है. ही इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल एज अ चीफ ह्यूमन कैपिटल and sustainability officer, means CHRO, with Shri Ramakrishna Exports Private Limited. He has achieved postdoctoral fellowship from South Korea, a PhD from the USA, advanced HRM from IIMA, MPhil, postgraduate diploma in industrial safety and environmental management, MSW, LLB, special and BSc physics. एक छोटी सी जिंदगी में इतनी सारी डिग्री कैसे ले लेते हो भाई? जीप भी साथ नहीं दे रही है बोलने में. He has published 6 HR, IR, HSC related research paper in various national and international journals. He is also certified lead auditor for ISO standards, that is 9001, 45001 and 27001. A certified assessor for lean manufacturing, materials, flow cost, accounting, psychometric assessments, etc., 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 etc. एक इंसान कितनी कमिटी में, कितने फोरम में, कितने कम्युनिटीज में एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या मैक्स टू मैक्स 10. बट दिस जेंटलमैन इज कनेक्टेड विथ कम्युनिटीज, forums in 24 committees, and that also not in Surat, not only in Gujarat, not only in India, but all over the world, Brazil, USA, etc., etc., etc. He is none other than Dr. Nirav Mandir. Last but not the least, but he is always hit. Hit cricket के बारे में कहा जाता है. So last but not the least, he is always hit. आज के हमारे moderator, pioneer, corporate trainer and growth strategist. He is most sought after corporate trainer and business development consultant since last 25 plus years. He is a founder of Intellectual Previsor, which has served more than 250 corporate clients successfully. I would say शायद ये लिखने में गलती हो गई होगी उनकी. 25 plus years नहीं कह सकते, 35 plus years कह सकते, क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग, लाइफ की फर्स्ट ट्रेनिंग वॉज दिस टू जेंटलमैन. अभी जो जेंटलमैन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है श्री मृणाल व्योमेश शुक्ला. He is the moderator of today's second event. He has played an important role as a pioneer trainer and growth strategist to influence human productivity in the growth and development of trade and industry. Since last many years, he has a prolonged journey as a trainer. He has delivered 2,000 plus training workshops for 300 plus corporate houses, MNC, MSMEs, government bodies, and educational institutes. He has delivered training as his passion is training. He has traveled to 40 plus cities and 9 countries. Again, itni choti si life mein, how it is possible to travel in 40 cities and 9 countries? Sir, wait. Abhi baki hai. His mesmerizing oratory and vast experience help him to understand human psychology, which enable to provide appropriate solutions. मिले सुर मेरा तुम्हारा. एक बार इनसे बैठ के गुफ्तगू कीजिएगा कि क्या है मिले सुर मेरा तुम्हारा. He is having the excellent knowledge of cricket, and in his training sessions he often connects cricket with the business ideas. જ્યાં સુધી તાળી ના વાગે ત્યાં સુધી મહેફિલ કેવી રીતે જાગે? So over to you, Mr. Mrunal Vyomesh Shukla. My dear Dr. Nirav Mandir, he reminded me and he said that it is for the first time that
we have 3 panelists who are beautiful ladies. એટલે એની પહેલા હતા જ નહીં એમ બ્યુટીફુલ, એટલે આજે બ્યુટીફુલ છે, પહેલા એમ નહીં, આસમાની પહેલી વાર 3 ગોર્જિયસ લેડીઝ. And if I look at the audience, I find so many beautiful girls more than boys. It is also good that HR fraternity will be captured by ladies. Before we enter into panel discussion, let me ask all of you, आपने हिंदी में बात करवानी है, आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए. सुबह से आप बैठे हुए हो, जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठे हुए हो. हम सब कुछ कर रहे हैं, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ. हाँ जी, तो ये पहले तो ये जो गैप है ना उसको ब्रिज कर दो. ये जो गैप है ये बीच का, नजदीक आ जाओ भाई, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, पास पास आ जाओ. मैं यहाँ पे एक व्यक्तित्व का परिचय करवाना चाहूंगा. सुगम शर्मा जी, आप आगे आइए, आप ऊपर आइए, 2 मिनट के लिए ऊपर आइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए. ये हमारे सुगम शर्मा जी हैं. HR फ्रेटर्निटी को उनको पहचानना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया पब्लिकेशन, वो मैगजीन भी है, पीपल मैटर्स से सुगम शर्मा जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हमारे बीच आए हुए हैं ये कॉन्क्लेव के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. ये वंडरफुल पब्लिकेशन के लिए आपको उनको लंच के दौरान मिलना चाहिए, समझना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग टू सूरत. अब एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं. पहले हम सब लंच एरिया की तरफ देखते हैं, मुड़ जाते हैं उधर लंच एरिया की तरफ. रितेश आ बाजू, सब मुड़ जाओ भाई, बीच में जरा भी गैप नहीं चाहिए. हेलो, 3 लड़कियां उधर क्यों खड़ी है? इधर आ जाओ, गैप नहीं चाहिए. कन्हैया भाई समझ पड़े, गैप नहीं જોઈએ આપણને बिल्कुल. अब બધો ગેપ બધો કાઢી નાખો. मुरब्बी, हेलो सर, आगे जाइए, आप थोड़ा आगे जाइए, गैप मिटाइए. बिल्कुल गैप नहीं चाहिए, यहां पे गैप है, मिटिगेट द गैप. गैप नहीं चाहिए बिल्कुल. पंडित जी, ओके, ये बहुत बड़ा गैप है, वहां पे गैप खत्म करो. ऑर्गेनाइजेशन में गैप चलता है क्या? हाँ, ओके. सुनिए, अभी आपके आगे कोई खड़ा है, आपके आगे जो है उनको आपको थपथपाना है, मसाज देना है, थोड़ा स्ट्रोक भी दे सकते हो, उनको थोड़ा स्ट्रोक दो. रितेश के हमत पड़ेगे करने, पीठ थपथपाओ, मसाज दो, उनको थोड़ा टैपिंग करो, थोड़ा हिट भी कर सकते हो. हेलो, वहां पे क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? मेरी इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? चलने दो, मैंने बंद करने को बोला, अभी चलने दो. मैडम, मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभी पीछे की तरफ मुड़ जाओ, वो दरवाजे की तरफ मुड़ जाओ. जो अभी तक आपने किया था वो ही अभी आपको करना है. पीठ थपथपाओ, टैपिंग करो, मसाज करो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाउ गो टू योर सीट. थैंक यू. सुबह से खड़े ही नहीं हुए थे. आप सबके बढ़िया फुटवर्क के लिए, हाँ, બાબર આઝમ કરતા તમારું ફૂટવર્ક સારું હતું. ઓકે, એની મેસેજ, એની લર્નિંગ મેસેજ ફ્રોમ ધીસ એક્ટિવિટી? क्या મોટેથી બોલજે. ઓકે, સારું બોલે છે, માઇક આપો.
તમે જે પણ કંપનીમાં હો, ફેમિલીમાં હો, ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હો, જાહેર સંસ્થામાં હો, ત્યાં પ્યુપલ્સ ટુ પ્યુપલ્સ વચ્ચે ગેપ નહીં હોવો જોઈએ, એક અમે શીખ્યા. બીજું, તમારી સાથે જે પણ આ બાજુ છે કે આ બાજુ છે, જે પણ કામ કરે છે એને શાબાશી આપો, મોટિવેટ કરો टू ईच अदर. તમે પણ થોડી શાબાશી લો અને એને પણ શાબાશી આપો. अमित हिंदी में बोलिए ताकि यहाँ पे वहाँ पे हिंदी में सब समझ पाएंगे. हाँ, વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ધીસ इंग्लिश नहीं हिंदी. હા અચ્છા હિન્દી બોલો. હા આ થોડું બધા આમ ઉત્સાહ આવી જાય ને, એચઆરમાં આવી હોય ને એટલે આમ બધા સૂટ બૂટમાં આવ્યા છે એટલે. आज के ये सेशन से ये सीखा हमने कि आप जो भी कंपनी में या फैमिली में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पीपल्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपके. मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपके वो प्यून और वो ड्राइवर से लेके अप टू आपके सीईओ तक कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं आप उसकी शाबाशी लइए और उसको शाबाशी दीजिए. आप अगर शाबाशी देंगे तो वो भी आपको शाबाशी देगा. तो रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वॉट जो मैं ये गेम में मैं सीखा. थैंक यू वेरी मच मोनाल भाई. થેન્ક યુ માય ડિયર અમિત શાહ. અમિત શાહ બહુ મદદરૂપ થતા હોય. હા, ઓકે. સો વી કુડ લર્ન. सी एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन. और दूसरा, अगर आप किसी की पीठ थपथपाते हो, मसाज देते हो, बाल उनके खराब, किसी ने बाल खराब नहीं किया, हम तो सब करते हैं, तो आप किसी को थपथपाते हो, थोड़ा टैपिंग करते हो, तो उससे आपको अच्छा लगा, आपके लिए किसी ने किया. अगर आपके लिए किसी ने किया, आपको अच्छा लगा, तो आपको किसी के लिए भी करना चाहिए. इसीलिए वो रिवर्स हमने कर दिया. ठीक है, मैं जो समझा हूँ वो इनमें से एक ना छोटी सी बात मैंने यहाँ पे प्रयास किया है. अभी सीधे हम अपने बिजनेस पे आ जाते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है पैनल डिस्कशन का, ट्रांसफॉर्मिंग एचआर इनटू अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंक्शन फॉर द बिजनेस एफिशिएंसी. इनके लिए हमारे साथ हैं पैनलिस्ट के तौर पे पूजा मोक्साना, हेड DEI एंड HR, बिजनेस पार्टनर ग्लोबल IT एंड प्रोक्योरमेंट, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. मैं बारी बारी से हमारे पैनलिस्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा और उन्हें सबसे पहले आपकी परवानगी के साथ, परमिशन के साथ, सारे पैनलिस्ट अपनी बात ये टॉपिक के ऊपर 10-10 मिनट के लिए आप व्यक्त करेंगे. चारों पैनलिस्ट अपनी बात रखेंगे. इसके बाद में हम यहाँ से, मैं एक आध बे सवाल ठीक है मैं करूँगा. वैसे मुझे पिछले 7 कॉन्क्लेव से पता है कि यहाँ से सवाल बहुत सारे नीरव भाई आते हैं, तो मैं अपने आप को ये इसमें से थोड़ा पीछे ही रखूँगा. आपके सवाल के लिए दोनों तरफ माइक्रोफोन रहेगा, लेकिन चारों पैनलिस्ट अपनी बात कर दें, उसके बाद में हम सवाल करेंगे. ये सही रहेगा? हाँ, आपको जगाने के लिए मैं बार बार पूछता रहूँगा. तो सबसे पहले इनवाइट करते हैं पूजा मोक्साना को. पूजा मोक्साना, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डिलीवर योर आइडियाज फॉर 10 minutes. वुड यू लाइक टू कम हियर और यू वांट टू स्पीक फ्रॉम देयर ओनली? 10 मिनट के लिए बोलना है आपको. This is okay, I guess. ओके ओके फाइन. Thank you. So nice to meet all of you and see this room full of lot of energy. When he said actually before the break announcement that we don't need a break, I had my doubts that most of you will go out and have your little break. But I'm very happy that you all are invested, and I'm big congratulations to the organizing team to pulling such a large gathering together and having all of us coming from different organizations to give our perspective to all of you. With that note,
I think a lot has been spoken since morning today, and I feel, as Arun ji just mentioned, right, there, sure. ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકો અરે છો. વાહ સોને पे सुहागा गुजराती में बोलो जैसे अरुण जी ने हमें बताया, हर स्टोरी, हर चीज़, हर रिचुअल के पीछे एक इवोल्यूशन स्टेज से वो स्टोरी होके आया है, राइट. स्पीकर का क्या मीनिंग है, लोकसभा क्यों मिलता है, एचआर क्यों काम करता है. आई थिंक हिस्ट्री हैज़ सीन कि बार बार एचआर डिपार्टमेंट जो एक पर्सनल डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रू, जैसे जैसे प्रॉफिट आता गया, जैसे कंपनीज बड़ी बनती गई, आई थिंक जो सीईओज थे, जो उस टाइम के एंटरप्रेन्योर्स थे, उन लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली रियलाइज़ होता गया कि जो बहुत बड़ा डेल्टा डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो मेरे लोग हैं. एंड आई थिंक उसी वजह से पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं होके आज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना है. वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल इवोल्यूशन स्टेजेस. टाइम ऑफिस से फिर हमने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, फिर हमने लर्निंग डेवलपमेंट करना शुरू किया. पहले हम सिर्फ सेफ्टी के ट्रेनिंग्स करते थे, कम्युनिकेशन के ट्रेनिंग करते थे, आज हम एनएलपी के ट्रेनिंग करते हैं. वी हैव एन एक्सपर्ट ऑन द पैनल ऑन एनएलपी ऑल्सो. उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ग्लोबल जियोग्राफीज कैसे ऑपरेट करेगी, हाउ विल वी टेक होल्ड ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईच रोल. आप लोगों ने ये वर्ड्स भी सुने होंगे, जॉब इवैल्यूएशन होते हैं, जॉब एनालिसिस होते हैं, कौन सा काम कितना क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन में वो जाना जाता है. उसके बेसिस पे वहाँ पे कौन ये ओहदा लेगा वो डिसाइड होता है, राइट. एंड आई थिंक टैलेंट, अचानक से जो टैलेंट डिपार्टमेंट हो गया, एंड सडनली बिफोर फ्यू इयर्स हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो लोग एक बहुत ही डिफरेंशियल इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उन लोगों को हमें डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट. क्योंकि वो लोग कंपनी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाएंगे. एंड दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. नाउ इन दिस लाइट इमेजिन कि अगर हमारा टाइम, समय, एनर्जी आज भी हमें उतना ही देना पड़े टाइम ऑफिस के ऑपरेशंस पे, या आज भी हमें उतना ही देना पड़े रिक्रूटमेंट के एफर्ट्स पे कि न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन जा रहा है, हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उनको हम मैन्युअली रिव्यू कर रहे हैं, तो शायद हम लोग जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर ही नहीं पाएंगे. एंड आई थिंक दैट्स वाई द होल कॉन्वर्जेशन ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन प्लेस. Would technology replace HR department? I think it's not possible, right? Is it possible? What do you think? No, right? I think technology का सबसे बड़ा contribution to human resource department would be to free our bandwidth. हम जितने काम मैन्युअली करते हैं, applications, LinkedIn, Naukri comes up with very high edge analytics today, right? Exactly आपको जो रोल चाहिए वो कहाँ पे, कितने लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, ग्लोबली बैठे हुए हैं, उन लोगों का KPI क्या है, वहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है. लर्निंग एंड डेवलपमेंट हाईली ऑटोमाइज्ड. E-learning is what, you know, each company is pursuing today, and that's where people are learning quickly. Bite-sized learning has come up in a big way. आप लोगों ने शायद कुछ सालों पहले सुना होगा, वो OHS सर्वे होता था, GPTW होता है अभी साल में एक बार होता है, OHS होता था 2 साल में एक बार होता था in most of the companies, right? Today we don't really rely on these surveys. अभी टीम मैनेजर को, CEO को, any point of time they want to roll out some survey, you go to even Teams, you have survey feature, right? Survey has become so easy because feedback has become so important.
So I think in each HR process for diversity, equity, inclusion, I use so many insights day in and day out. For example, and it is also cross-functional. For example, for DEI insights, I don't really need to have very specific insights of couple of segments only. I go to my recruitment team and I go and ask them that, okay, can you give me some insights on pharma company, non-pharma company, finance department, what is the percentage of women, transgender and people with disabilities sitting in which companies, and they can help me today with these insights, right? I think with this changing environment, HR professionals like all of us, our ability to interpret this data becomes extremely critical. And for that, we need to change our mindset, right? एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए, बड़े रिपोर्ट बनाने के लिए, फर्स्ट को वो रिपोर्ट रिलीज करने के लिए, वी हैव टूल नाउ एंड इट इज़ अ बेस्ट गिफ्ट आई कैन इमेजिन. आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दिस वर्क, राइट? माई जॉब, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू चेंज अवर ओरिएंटेशन. The moment we wear a hat of strategic business partner, we should be able to understand what people are thinking, what is the mood of the organization very quickly, maybe through these surveys and quick checks, and our connect with people. I should be able to look at the data of my people, their age segments or their requirement segments, or what are they searching on internet, what kind of policies they want me to change on a click, and I should be able to present it to the management or to my leaders to take action on that. For me personally, and what I have seen great HR leaders doing, who I believe they are my mentors, is most of their time they invest in building relationship in the organization. Because our job of influencing बहुत ज़रूरी हो जाता है, right? और influence आप कब कर पाते हो? जब आपके connection है. इन्फ्लुएंसिंग स्किल ऐसा नहीं है कि आपने एक मीटिंग रूम में एंटर किया और आप बहुत अच्छा स्पीच दे दोगे और शायद सब लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. ऐसे नहीं होता है, राइट? आई थिंक HR, द मोर HR इज़ विजिबल ऑन द ग्राउंड, आप लोगों से जितना मिलोगे, आप मैनेजर से जितना मिलोगे, आप वो क्या बिजनेस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो कितना नज़दीकी से जानोगे, और आप अगर 2-3 आइडियाज़ भी उनको दोगे तो दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन. एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ नाउ गिविंग अस स्कोप टू फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक दी. And I think in that light, I would say it's an absolute boon. Yeah, so that's from me. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने ये जो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स वाली जो बात है वो आपने हमारे सामने रखी. आपकी बातों से ये समझ में आता है कि भाई एक डेटा कलेक्ट करना वो टेक्नोलॉजी कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर वर्क करना वहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आता है. बहुत ही बढ़िया आपने अपनी बात हमारे सामने रखी है. अभी मैं इनवाइट करूँगा अपनी बातों को रखने के लिए श्री सोहेल भाई सवानी, फाउंडर सोहेल एंड कंपनी एंड सवानी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट. वो हमारे मैनेजिंग कमेटी के, हमारे चैम्बर के काफ़ी एक्टिव मेंबर भी रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम HR से रिलेटेड इनके द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत भी हुए हैं. आप बात करेंगे लॉ के बारे में, बात करेंगे पॉलिसी के बारे में, बात करेंगे प्रेजेंटली क्या हो रहा है. और मेरी सारे स्पीकर से ये विनती है कि कुछ समय पहले क्या होता था और अभी इसमें क्या बड़ा चेंज हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ है, इनके बारे में हम बात करेंगे. सोहेल भाई, फ्लोर इज नाउ योर्स. थैंक यू सो मच मृणाल भाई, SGCCI, खास करी ने नीरो भाई मंदिर. 8वीं HR कॉन्क्लेव आज हो रही है और उसमें पहली दफ़ा कंप्लायंस लिटिगेशन लॉ को भी आपने स्टेज शेयर करने दिया. इसके लिए थैंक यू सो मच. सुबह हमने काफ़ी सारे स्पीकर्स को सुना. भावना जी ने बताया कि जब वो टाइम ऑफिस और पेरोल के लिए बात की उन्होंने अपने फैमिली से,
तो उन्होंने मना किया। लेकिन ये एचआर का जो रोल है काफ़ी वर्सेटाइल है, और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ इस डायश का सदुपयोग करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, खासकर एचआर से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऑनर्स भी हैं। जहाँ बात की जाती है रिक्रूटमेंट की, जहाँ बात की जाती है एआई टेक्नोलॉजी यूजेस की, एचआर फंक्शंस की, कंप्लायंस एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल एरिया है जो हम भूल नहीं सकते हैं। रिसेंट एक स्टोरी में कहना जा रहा हूँ कि एक कंपनी है, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को ट्रिप भी करवा रही है, यूनिफॉर्म भी दे रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा है, मिनिमम वेजेस भी दे रही है, सारे कंप्लायंस कर रही है, और टू एंड फ्रो चार्जेस भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। नाउ दोज कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आर आस्किंग फॉर परमानेंट स्टेटस, और ये कंपनी चाहती है कि नहीं, हम ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ही बनी हुई रहना चाहते हैं। सो आईआर की एक मैटर क्रिएट होती है, जहां एचआर की ओर से कुछ चीज़ों का सर्विस कंडीशंस में ध्यान नहीं रखा गया, और ये मामला एक लिटिगेशन के रूप में लेबर कोर्ट में चल रहा है। आज एआई के इतने ज़बरदस्त टूल है, और एचआर का जो सबसे क्रूशियल रोल है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आप कौन से गवर्निंग लॉ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सारी कंडीशंस जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, खास करके ट्रांसफर्स के क्लोज हो, चाहे आपके इंक्रीमेंटल क्लोज हो, चाहे जितनी भी सर्विस कंडीशंस है, उसको हम ठीक से अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर में प्रॉपर गवर्न करें, जो हमें फ्यूचर लिटिगेशन या फ्यूचर डिस्प्यूट्स में काम आ सकते हैं। मैंने एचआर में सबसे बड़ा अगर कोई ड्रॉबैक देखा हो आज की तारीख में, मैं सूरत की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शंस बिल्कुल भी नहीं लिए जाते हैं। और अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लोगे, आप अगर वार्निंग नहीं दे रहे हो, शोकॉज नहीं दे रहे हो, चार्जशीट नहीं दे रहे हो, आपका डिसमिसल, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा, और फिर अगेन कोर्ट आपको बताएगी रीइंस्टेटमेंट विद बैक वेजेस। सो प्रॉपर अगर आपका डिसिप्लिनरी एक्शन बना हुआ रहेगा, और एआई की टूल के मार्फत आप उसको बना सकते हैं, किसी को वार्निंग देना है मिस अप्रोप्रिएशन के लिए, वायलेंस के लिए, कुछ भी आप उनको इश्यू कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बना के रखनी पड़ेगी। आपका रोल, जैसे सुबह भावना जी ने कहा कि एचआर, और हमको मिश्रा सर ने भी बताया कि बहुत ही वास्ट एंड वर्सेटाइल है। हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ को, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखने के साथ साथ कंप्लायंस को भी ध्यान में रखना है, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी रखना है, और ख़ास करके गूगल के माध्यम से हम जो डेटा लाते हैं उस डेटा को अपने खुद के माइंड से भी वेरीफाई करना, और कंपनी की क्या टर्म्स है, कंपनी की कंडीशंस क्या है, नेचर ऑफ वर्क भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस होते हैं, एब्सकॉन्डिंग हो जाते हैं, वहाँ पे हम हाथ हमारे खड़े के खड़े रह जाते हैं। मैनेजमेंट हमें बोलता रहता है कि ये हमारा सुपीरियर बंदा चला गया, हम उसे रिटेन नहीं कर पाए, हम उसे नोटिस तक नहीं दे पाए, उल्टा उसने हमारे पे केस डाला है, और हम डरते हैं। एचआर का बहुत क्रूशियल रोल है, इसीलिए हमने ऐसी प्रैक्टिकल कोर्सेज स्टार्ट की हमारी सवन इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर लॉ एंड स्किल डेवलपमेंट में, ताकि हम ओवरऑल ग्रोथ कर सके, एचआर का कंप्लायंसेस भी समझा सके, हम उनको डिसिप्लिनरी एक्शन भी समझा सके। आप में से कितने एचआर हैं जिन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन कराया हो या मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ा हो? ऑनेस्टली रेज योर हैंड्स। वेरी फ्यू 5 to 6। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर आपको रिफर करने होंगे, आपको उसकी पूरी डिसिप्लिनरी एक्शंस रिफर करनी होगी। पहले ये होता था कि आपको लीगल पर्सन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लेकिन एआई के जमाने में कहां है, आप उसको इमीडिएटली नोटिस सर्व कर सकते हैं। इनके बाद अगर मैं बात करूं तो सैलरी स्ट्रक्चर की, सैलरी स्ट्रक्चर में खास करके आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम एचआर की गलती की वजह से एम्प्लॉयर्स को बियर करना पड़ा है, और बहुत सारे लिटिगेशन पूरे भारतवर्ष में हुए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सेटल किया। हमने फैंसी अलाउंसेस को अपनी सैलरी स्लिप में स्थान दे दिया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड,
without justification, without proper documentation. Across the board we are paying allowances to all employees और उसे पीएफ सैलरी की रूप से कंसीडर किया गया और एट द एंड लैक्स ऑफ रुपीस का असेसमेंट हुआ पीएफ ऑफिस के द्वारा। वहां पे हम बात करेंगे ईएसआई की, इतने ब्यूटीफुल इसके बेनिफिट्स हैं। आप मैटरनिटी बेनिफिट ले लीजिए, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ले लीजिए। आज हमारे सूरत में 2016 से जो अस्पताल मॉडल हॉस्पिटल बनने जा रही थी, लेकिन हमारे अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अस्पताल को इतना साल निकल गया, क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को ईएसआई की जो ई पहचान है वो नहीं देते हैं, हम उनको अस्पतालों तक नहीं भेजते हैं, ना हम उस तरह के जितने सुविधा समागम या निधि आपके निकट तरह के प्रोग्राम्स में हम वहाँ पे जाके अपनी बात को नहीं रखते हैं। सो एचआर का रोल मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ सुबह से बताया जा रहा है कि बहुत ही वर्सेटाइल है, वहाँ कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है। आप में से कितने लोग कंप्लायंस में इन्वॉल्व है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। कंप्लायंस में बहुत सारे लोग नहीं हैं, तकरीबन वेरी फ्यू 5%। और खास करके फ्रेशर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्या आपने सोचा है कि बीइंग ए एचआर विदाउट हैविंग अ लॉ डिग्री आप क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप प्लीड कर सकते हैं एक अथॉरिटी के सामने जो जज की भूमिका में है, चाहे वो ग्रेच्युटी का केस हो, ईपीएफए का 7A केस हो, चाहे ईएसआई का 45 का केस हो। लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आपको रिस्पेक्ट, प्रमोशन और स्टेटस कहां से मिलेगा? मैं यहां डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो आज हमारे बीच में सबसे बड़ी खामी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये ऑब्वियस है बिकॉज 5% ही कंप्लायंस में इन्वॉल्व है यहां पे लोग। मैं बात कर रहा हूं अभी पॉश कमेटी की। क्या आप जानते हैं कि बीइंग ए एचआर और बीइंग ए एक्सटर्नल मेंबर आप एक जुडिशरी की पोस्ट पे बैठ सकते हैं, आप एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, किसी महिला को सुन सकते हैं, आप उनके सामने वो फैसला दे सकते हैं जिस फैसले को सीधा सीधा जो सेशन कोर्ट के अंदर में ही चैलेंज किया जा सकता है। आपके पास पावर्स हैं। आप एचआर के फंक्शंस के साथ, कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ कंप्लायंस में इन्वॉल्व होइए, लिटिगेशंस में इन्वॉल्व होइए। आप उनके साथ चार्जशीट, मेमो, शो कॉज नोटिस, उनसे जो गिल्टी प्लीडिंग कराना, सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। फिर देखिए कि एचआर एक जो प्रॉपर कंप्लायंस के साथ आप जो कंपनी को डिलीवर कर पाएंगे, जो एक डिसिप्लिन, शिस्तता के बिना कुछ नहीं होना है। आज अगर हम देखेंगे हमें जो ब्यूटी लगती है फॉरेन कंट्रीज़ की, वो वहाँ की ट्रैफिक डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, वहाँ के लॉ, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ भी हम हमारे कैंपस को एक डिसिप्लिन बनाना चाहेंगे, हर एचआर चाहेगा, और उसके लिए हमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी की एचआर पॉलिसीज पढ़नी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रॉपर ड्राफ्ट करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिनरी एक्शन सीखना पड़ेगा, हमें लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये सारे काम हम जो है कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच मृणाल भाई, थैंक यू। Thank you so very much, Sohail bhai. Neerav bhai, we must confess that this angle was missing in previous few HR conclave, અને સાહેબ તમે બહુ સુંદર વાતો આપના દ્વારા થઈ કમ્પ્લાયન્સ ઉપર અને લો ઉપરની વાતો ઘણી બધી अनअवेयरनेस हमारे यहाँ है, क्योंकि जैसे नीरव भाई ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये MSME ड्रीवन HR है यहाँ पे। तो MSME में जो मालिक है वही HR को जितना समझता है उतना वो कर सकता है। लेकिन ये आगे बढ़े इससे पहले मैं यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पे मालिक कितने हैं, MSME लीडर्स कितने हैं? HR प्रोफेशनल को छोड़ के ज़रा बराबर से हाथ ऊपर करें। ये आसमानी जी के लिए ये इतने सारे हैं आसमानी जी, आप मुझे पूछते थे। बहुत बढ़िया बात सोहेल भाई ने हमारे सामने रखी है। आपने हमारे सामने क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन की बात रखी है, आपने नोटिस के बारे में कहा है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। नोटिस देने का यहाँ पे हम एचआर को यही समझते हैं कि पीठ थपथपाओ, मैंने भी वही किया। मैंने कहा था कि थोड़े स्ट्रोक भी लगाओ, लेकिन किसी ने लगाया नहीं। ये हम कर रहे हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ESIC के बारे में आपने बताया, बहुत सारी मिथ यहाँ पे है, वो क्वेश्चन आंसर में हमारे सामने आएगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एंड
योर परमानेंट एम्प्लॉय, ये भी सारी बहुत सारी बातें मैं मानता हूँ यहाँ से आएगी। मुझे आपको रोकना पड़ा, मैं चाहता नहीं था, क्योंकि जो बातें अभी तक नहीं हुई है वही बातें आप कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपके सामने आसमानी सुरवे जी, इज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, अलग अलग बहुत सारी हैट आप पहनते हैं, और आप यहाँ पे हमारे साथ एक और आगे कॉन्क्लेव में भी थे, तब आपने बहुत ही बढ़िया किया था, इसलिए आज वापस हैं आप। तो अभी का फ्लोर आपके लिए है आसमानी जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये जानना है, आप में से कितने लोग अभी भी ट्रांजैक्शनल एचआर करते हैं? ट्रांजैक्शनल एचआर का मतलब है मैनुअल सैलरीज करना, मैनुअल अटेंडेंस करना। मैंने एमएसएमई का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अभी भी स्मॉल कंपनीज़ में, मीडियम कंपनीज़ में लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट वैलिड नहीं लगता है। सो लॉट ऑफ फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेस होते हैं, वो शुरुआत हमेशा मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन से करते हैं। तो आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी ट्रांजैक्शनल एचआर करते हैं, जिसमें हम एक्सेल में सैलरीज बनाते हैं, एक्सेल में एचआरआईएस बनाते हैं, या फिर जो एम्प्लॉय फाइल्स है उसके स्कैन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हार्ड कॉपी में एम्प्लॉय फाइल्स रखी जाती है? प्लीज़ फील फ्री टू रेज योर हैंड। So I believe some of you are there and most of you have moved to technology. तो ये itself आपको एक आंसर मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से HR में आके बिजनेस को इफ़िशिएंट बना रही है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप लोगों में से जितने लोग HRMS और HRIS या जो भी सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी के यूज़ से काम कर रहे हैं, कितने लोग उसके डेटा को एनालाइज करते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू एनालाइज द डेटा जो आपको आपके HRMS और HRIS से मिलता है? डेटा जैसे थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि जेंडर डाइवर्सिटी कितना है हमारे कंपनी में, राइट? हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, एज ग्रुप क्या है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या डाइवर्सिटी है, कितने हम में से जो भी आज टेक्नोलॉजी पे मूव हो चुके हैं इस डेटा को यूटिलाइज करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। वेरी फ्यू। सो अगर थोड़ी देर पहले 70% ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे मूव हो चुके हैं, विथ 30% ऑफ पीपल जो टेक्नोलॉजी पे नहीं हुए हैं। 30% पीपल आई डिस्काउंट यू, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत मैनुअल वर्क है, आप उसी में से बाहर नहीं आ रहे। बट जो 70% लोग हैं जो टेक्नोलॉजी पे मूव हो चुके हैं, वो इस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर रहे। दिस डेटा इज़ गोइंग टू हेल्प यू हाउ यू कैन मेक योर बिजनेस मोर इफ़िशिएंट। हम आज की दुनिया में ये कहते हैं इंडस्ट्री में, वो पर्सन सबसे रिच है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, राइट? अगर हम सोशल मीडिया ओनर्स की बात करेंगे, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल। गूगल वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल, बिकॉज उसके पास आज दुनिया के सबका डेटा है। आज आप ऐसी एक भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो जिसमें वो आपसे आपके फ़ोन का या आपके डिवाइस के सारे एक्सेस नहीं मांगता है। इट विल आस्क फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट्स टू योर फोटोग्राफ्स टू योर कैमरा टू एवरीथिंग, राइट? वो ये एक्सेस लेके क्या करते हैं? दे आर बेसिकली कलेक्टिंग डेटा। फिर इस डेटा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उसकी स्टडीज़ क्रिएट की जाती है। सो अगर आज आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो आप उस डेटा को बिजनेस इफ़िशिएंसी में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सर ने अभी एक कंप्लायंस की बात की, राइट? आप में से कितने लोग उस डेटा पे फोकस कर रहे हैं कि साल में कितने आपके पास मेडिकल के क्लेम्स आए हैं, कितने लोगों ने ESIC का यूटिलाइजेशन किया है? नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? आपके यहाँ पे अटेंडेंस के मेमोज आप भेजेंगे, इनडिसिप्लिन के मेमोज आप भेजेंगे, कब भेज पाएंगे? जब आपके पास उतना सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगा, वो डेटा होगा विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं इसको कॉन्फिडेंटली एक मेमो भेज सकता हूँ। वी हैव टू ड्राइव आर बिजनेस इफिशिएंसी फ्रॉम डेटा, और डेटा आपको मिलेगा आज के दिन में ईजीली फ्रॉम टेक्नोलॉजी। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। जहाँ पर नहीं है, जहाँ बिजनेस ओनर्स है, आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू मूव
HR ऑन टेक्नोलॉजी। कोविड में इसका मेरे क्लाइंट्स के साथ मैंने सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा है। पीपल हु वर ऑन एक्सेल, और जो लोग लोकल सर्वर पे डेटा रखते थे उनको बहुत सफ़र हुआ है। क्यों? क्योंकि कोविड में हमारे हाथ बंद गए थे। सो पीपल हु वर ऑलरेडी ऑन टेक्नोलॉजी उनको डिफ़िकल्टीज नहीं आई, बट पीपल हु वर नॉट ऑन टेक्नोलॉजी उनको बहुत डिफ़िकल्टी आई। कोविड वॉज इन पास्ट, पर उसमें से जो हमारे लर्निंग्स है उसे हमें प्रेजेंट में और फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, राइट। सो टेक्नोलॉजी, HR एंड डेटा, इससे आपके बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ के ओवरऑल वेल-बीइंग व्हेन आई से इट इज़ अबाउट HR का बिहेवियर, आपके एम्प्लॉयज़ का क्या है। सर्वेज एंड एवरीथिंग, येस इट इज़ वंस इन अ टाइम, कब तो काफ़ी सर्वेज भी अलग हो गए हैं। आप आपके एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय इवेंट्स में, एक्टिविटीज़ में पोलिंग कर सकते हैं, राइट। देयर इज सो मच ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ कम। आपके एम्प्लॉयज़ का पल्स समझ सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ के क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप वो भी समझ सकते हैं। बट उसके लिए पहले आपको एफर्ट लेके अच्छे से टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी होगी। आपके एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपकी टेक्नोलॉजी में, एंड देन यू कैन ड्राइव योर कंप्लीट बिजनेस फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव थ्रू डेटा। बट आई बिलीव आज बिजनेस एफिशिएंसी लाने के लिए इम्पॉर्टेंट इज़ डेटा, और डेटा आपको टेक्नोलॉजी से बेहतर और कोई मेथड नहीं दे पाएगी, राइट। सो विद दैट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। थैंक यू सो वेरी मच आसमानी जी। आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग डेटा एनालिसिस और HR के ऊपर आपने बहुत बढ़िया बातें की। बहुत सारी मिथ यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि हमारे लिए क्या HR डिपार्टमेंट मैंडेटरी है, कितने लोग हो तो HR हमारे यहाँ होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सबके लिए ये बात रख रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़े हम, और अभी हम बात करना चाहेंगे भावना जी कृपाल मित्तल को आपने इनॉग्रल में सुना है, और अभी हम भावना जी से विनती करेंगे कि आप HR के ये पैनल डिस्कशन के लिए आप अपना कुछ योगदान दें, आप कुछ बातें करें। Thank you so much. So I'm back again, and good to listen to all the panelists. ये बात तो I think हम सब agree कर रहे हैं कि we can't escape from technology. Technology को adapt करना ही progressive होना होगा. I remember the time when I was doing my internship during MBA days, and I was in L&T, and the project was HRIS. उस time HRIS नया आया था. The personal department was transferring into HR approach. So we went to a lot of companies, हमने benchmarking किया, हर industry को हमने map किया, and we realized that IT sector HRS के बारे में जानता था और बाकी सेक्टर्स सोच रहे थे कि क्या है एंड कैसे अडेप्ट करेंगे हम। और धीरे धीरे लास्ट 15 इयर्स में ऑलमोस्ट हर कंपनी HRIS, ऑटोमेटेड HRIS पे मूव कर चुकी है। नाउ द नेक्स्ट एरा इज AI. सो आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू यूज AI? See, all of you. And I hope you know about generative AI. Although इसके misuse भी हैं, we know about deep fake cases and all. But if you use it to your advantage, and I'm talking about HR, AI-based interviews. आपको job description भी अब लिखने की ज़रूरत नहीं है. You just feed in the key points, job description आपको लिखा ही आ जाएगी. आप इंटरव्यू के लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे हमारे सामने कि वो इंटरव्यू ले रहे थे किसी टेक्निकल पर्सन का और उन्होंने AI से क्वेश्चंस बनवा लिए. सो इट्स सो ईजी, इट विल बी, इंफॉर्मेशन विल बी विद यू इन फ्लिक ऑफ अ सेकेंड. सेकेंडली, जब आप एनालाइज कर रहे हैं इन डेटा पॉइंट्स, आपने 3-4 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आ चुके हैं, उनका आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, उनके दूसरे एनालिटिकल टेस्ट करते हैं, द डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं ईजिली थ्रू AI. Let's move to the onboarding part. We already, सब companies onboarding जब हम candidates को करती हैं, so we have designed the induction program that can be fully automated. हम सब के companies, most of the companies have an online LMS. That is also one example of using technology to our advantage. किसी को वहाँ पे
2 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपका इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आप क्वेश्चंस दीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है. It's so interactive, you don't feel like that there's no human being. Because बहुत ही innovatively design होती हैं training programs. This is like, and then you can use your time on things that technology can't do, which is connecting with people. That cannot be taken away by technology. Let me give you a third example is chatbots. I don't know if you guys know about chatbots. Very, very popular, and in fact we are also trying to implement that. आपको किसी को क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है, वो पॉलिसी में क्या हुआ, just put up in the chatbot will throw the answer to you. So you are saving that time and you are using technology to the benefit. Now let's come to the performance assessment stage. You can define KPIs, key result areas, KRA documents also using the AI. You don't need to invest so much time thinking ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. You know what should be the main riders and what will be the assessment criteria, will be the weightage of each KPI, and you get the KRA document design. So again, it's saving a lot of time, which, जैसे मैं example देती हूँ, in my daughter's school, they don't deduct marks for spelling mistake, जबकि हमारे टाइम में spelling mistake पे नंबर कटते थे. उनका मानना है कि बच्चों ने सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, तो अगर स्पेलिंग नहीं भी आती, they can still do the work, which was not very encouraging for me to hear that, but actually this is the reality. This is the reality that अभी हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे ओपन बुक एग्जाम होता था. It was more analytical rather than mugging up. So coming back to HR area, KPIs. सोहेल जी ने compliance की बात की. Compliance is a critical function that HR don'ts. एक कुछ गलत चीज़ चली जाएगी, company can be dragged to the court. So we have to ensure compliance orientation important है, और compliance इतना vast है, if you don't have it on your online system, you cannot manage, because so many compliances, so many laws. India is still driven. We were hearing about those codes, but they are still to come. But with data at your fingertips, you can analyze how many on time, how many delayed, what can be the impact, and it throws all the important information. Like he was saying that, writing, doing the disciplinary proceedings and all, you can have everything ready-made. You don't need to think what to be written there. And an important aspect is development process. So employees, when they join, क्या उनका qualification था, how they have progressed, what skills need to be enhanced. Everything will be, guided by the AI processes. Culture. आप फोकस करेंगे कल्चर पे, बिकॉज आपका पास बहुत टाइम होगा, और अगर कल्चर सेट इन हो जाएगी बहुत अच्छे से और टेक्नोलॉजी HR काम कर लेगी, तो एग्जिट्स कम होंगे. नाउ आई एम कमिंग टू एग्जिट्स. एग्जिट ऑल्सो, वाई पीपल आर लीविंग. engagement levels. Ms. Surve spoke about those surveys. We also do, and I think all of us do the surveys. Very easy to design. Again, use AI, put it on Teams, put it on any channel that you think is safe, and you get the results. You can see the engagement level. So data, again, throws so many right parameters for you to work on. And then, as HR, utilize your time, again, going back to culture building. Set in the right culture, assess the tone using technology. And I think then the work is done. But again, it's a journey. So adaptation of technology and ensuring that everyone understands the usage of technology, because again, we have people who will be in the 50s and there will be people who will be in the 20s. So strike a balance and move ahead. Thank you. Thank you so very much, Bhavna ji. आपने भी बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी है. आपने KPI के बारे में बात बताई, आपने कैसे AI का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा मैं चारों से बात करना चाहूँगा कि फेवरिटिज्म और बायस वो हमेशा कल्चर बिल्डिंग के लिए सेंटर में रहा है, कि भाई किसी के लिए आप फेवरिटिज्म करते हो या बायस होते हो.
एआई से इसका फ़ायदा हमको मिल सकता है, जो कल्चर बिल्डिंग के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे कि पुरानी बातें अभी भी चली आ रही है कहीं कहीं से, कि भाई मेरा प्रोफाइल जो है वो क्लियर है, और ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे एमएसएमई है उनके लिए ये हर एक अलग अलग प्रोफाइल पे लोगों को रखना, उससे ज़्यादा ये होता है कि मल्टीटास्किंग। फिर मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव ने जब वो कैच पकड़ा था और भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब उसने कहा कि मेरे मेंटर ने, मेरे कोच ने मेरे को ये कहा था कि तू अच्छा बैट्समैन है, तू कंट्रीब्यूट तो कर सकता है, तो तू और क्या कंट्रीब्यूट करेगा और मल्टीटास्किंग क्या करेगा। तो मैंने 150 कैच ऐसे पकड़ने के लिए मैंने प्रयास किए थे, उनमें से ये मैच विनिंग कैच ये था। तो मल्टीटास्किंग के बारे में, टैलेंट को मल्टीटास्किंग के लिए कैसे प्रमोट किया जाए, इसके बारे में आप में से कौन बताएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग के लिए उनको कैसे रेडी किया जाए, इसके ऊपर आप में से कौन बात बताएगा। हाँ, हेलो। आई थिंक एक फिलोसॉफी वो भी बोलता है, एंड वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट यू आर सेइंग, इज मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, and it is very difficult to do it for few people. But it is again, as we spoke in the morning, right? Now people over the years have developed an ability to do and focus on 2-3 things at a same point of time. And there is a lot of contribution to जो अटेंशन स्पान कम हो रहा है ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन है ये नए मल्टीटास्किंग फेज में. बट आई थिंक if you need a winning team, it is extremely important that one person should be able to do multiple things. हम लोग कॉरपोरेट में जनरली बहुत सारे टैलेंट कॉन्वर्जेशंस करते हैं, राइट? उसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो हु इज़ अ चीता प्लेयर फॉर अस, हु इज़ एन एलिफेंट प्लेयर फॉर अस, राइट? हु इज़ आवर रैबिट, who will do which job best when they are put in a particular situation. To define this career path for people, to realize who are your players who can do more than one thing, and I think investing a lot of time working with these people closely and work on their mindset is extremely critical. For example, आपने बताया कि सूर्य कुमार was told by his mentor, right, that he needs to really, not that he was not able to think, but sometimes that mentoring, that team's ability to realize that, okay, these are 2-3 high potential people who can do more than what they are doing today, right? So it starts from there. After that, you have to really identify. For example, we use a lot of psychometric tools to really find out who is great at what things. So one of the most popular tool is Hogan. And if you sit for say 3 hours, the tool throws couple of questions to you and it defines your pattern. This is all technology, again. There is no human interaction. It gives you some hundreds of questions, you answer these questions and it actually defines your behavior, right? That if you are it also defines how people are perceiving you, okay? So it's not only who Pooja is, but how Pooja is looked upon by Vishal, how Pooja is looked upon by Mrunal, basis Pooja's behavior pattern, right? So the next step we generally focus is on trying to understand a person at a deeper level. And then basis the inputs we get, people are supported by mentors, in few cases coaches as well, because I would like all of you to read something more about what is mentoring, what is coaching and how is it different. And what works for what type of people.
And then these people are identified, researched upon, and then guided by a couple of senior leaders within the organization, or in many cases outside the organization, to really work on which are the other capabilities and competencies they can develop, so that they exponentially contribute to organization's growth. And that's how it works, and I have seen it working very well in corporate context. But having said that, the most important thing in this whole journey is the person's ability and drive to do more than one thing, right? Today, as we are discussing, to learn technology, to be open for technology, and to ace the technology is also one's will and readiness to invest that amount of time and energy to learn new skills. So I think that remains as an underline in this journey. थैंक यू सो वेरी मच पूजा जी। सोहेल भाई, आपका साउथ गुजरात के साथ एसोसिएशन रहा है और ख़ास करके आपने दोनों पहलू को देखा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पहलू को आपने देखा है। बहुत सारी मीथ, हम जानते हैं कि बहुत सारी मीथ आपको सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप साउथ गुजरात से हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें आने वाले समय में समझनी पड़ेगी? हम सीधे आगे वाले समय की बात करेंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज और क्रिस्प रखना चाहेंगे। आपके लिए आप क्या लेसन्स ये मस्ट हैं, ऐसे क्या लेसन्स 3-4 आप देना चाहेंगे? जो अभी सर आपने पूछा कि मल्टीटास्किंग की बात आपने की, मैं ये मान रहा हूँ कि वो बंदा यूज़लेस हो जाएगा कुछ दिनों में अगर वो मल्टीटास्कर नहीं है। सो मल्टीटास्कर हमें बनना पड़ेगा। हमें डे बाय डे अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। और स्किल्स जो है और ये जो लर्निंग है, हम सब जानते हैं नेवर एंडिंग है। ख़ास करके जब आप एक कंपनी में एचआर के रोल पे या एडमिन के रोल पे जब आप हैं और आप चाहते हैं कि ये कंपनी प्रोग्रेस करे, यहाँ पे ह्यूमन एसेट्स रिटेन हो, तो उसके लिए जितने भी हमें डिसिप्लिनरी एक्शंस, डिसिप्लिनरी हमारी जितनी गवर्निंग लॉज है, उनको पहले से ठीक से समझ के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। लाइक एचआर पॉलिसी ना आए तो उसकी काफ़ी रेडीमेड टेम्पलेट्स भी है, आप एआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। और एचआर पॉलिसी को ठीक से समझने के बाद उसकी प्रोसीजर बनाएं, इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहेगा वो आप बनाएं और उसको आप ग्रेजुअली यूज़ करना सीखें। इनके बाद अगर हम बात करें कि उस एम्प्लॉय के जो डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेने हैं, कहीं पे भी उससे कोई चूक हुई है तो आप एटलीस्ट वहाँ पे उसे रियलाइज़ कराएं, ठीक है, उसकी एक फाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं। नो डाउट जहाँ हमारे मेंटरिंग वाला मामला है वो करके तो हम उसको ठीक करना ही है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल कंपनी का वो नाक दबाएगा एम्प्लॉई, तो आप उसकी उस फाइल में से वो कोई ना कोई ऐसा पहलू मिल सकता है जिससे आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो मेरी नज़र में बस यही है कि प्रॉपर जो आज का जो टेक अवेज है उसमें से हम उस पर वर्किंग करें और जो पॉलिसीज़ हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कंप्लायंसिस हो, उसे ठीक से समझने की कोशिश करें, उसके कोर्सेज में हम इन्वॉल्व हों। और ज़्यादातर जितनी इस प्रकार की इवेंट्स होती है या जो डिपार्टमेंट में इस तरह की कैंपेन्स रखे जाते हैं वहाँ पे हम इन्वॉल्व होकर मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिलाए और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक विन विन सिचुएशन हम बना सकते हैं। थैंक यू सोहेल भाई। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर पॉलिसी है? वेरी फ्यू। भावना जी, आपके लिए चलिए मैं सवाल पूछूं, इससे ज़्यादा आप लोग सवाल करिए। यहाँ पे माइक्रोफोन मैं मानता हूँ होगा। भावना जी, एक सवाल मैं कर लेता हूँ ताकि वहाँ तक माइक पहुँचे तब तक मैं ये आपने कल्चर के बारे में कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होनी चाहिए, सुपीरियर के साथ एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमारे सामने नीरव जी बैठे हुए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं हैं।
खुद को अपग्रेड करने के लिए, एडुकेट करने के लिए, अपस्केल करने के लिए, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है या वही 200 दिन घूमते रहते हैं? हाँ, ये क्या हो सकता है? एक व्यक्तित्व और कैसे परस्यू कर सकते हैं? अब ये मैंने कहा कि एमएसएमई में एक कॉन्क्लेव में जाने के लिए अगर दिल्ली जाना है, हम ये फ्री कॉन्क्लेव, ये 8वां भी फ्री कॉन्क्लेव ही है, अगर इसको हमने कुछ 400 रुपया भी अगर हमने डेलीगेट फी रखा है तो इट कैन सक्सीड। तो एक मेंटालिटी ये है कि आपके एम्प्लॉय, आपके हेड, उनके लिए हम कुछ उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए हम फ्री हैंड देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। ये सच है कि मीथ है? आपके एक्सपीरियंस से आप बताइए। आपने वो वाली बात बोल दी कि CFO और CHRO का डिस्कशन हो रहा था। CHRO ने बोला कि ये ट्रेनिंग का बजट है, इतना पैसा चाहिए। CFO ने बोला क्या फ़ायदा है, इतना पैसा इन्वेस्ट करने में, चले जाएंगे। सो CHRO ने बोला कि नहीं जाएंगे और रह गए तो अनट्रेन्ड रह जाएंगे, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। सो दिस डिबेट आई थिंक बहुत कंपनीज में चलती है, डिबेट कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। I come from a sector which is very very dynamic. Renewable sector में तो इतना dynamism है, इतनी companies हैं और इतना काम है, but still, and I'm giving example of my company, we know that you have to invest in people. ठीक है, हमारे यहाँ नहीं काम करेंगे, कहीं और करेंगे, but at the end of the day it will benefit the sector. आज हम ट्रेन कर रहे हैं, हम सभी के सभी लोग मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्रूट करते हैं, फ्रेशर्स। हमारे टाइम में फ्रेशर्स का स्टे पीरियड 3 से 5 साल होता था फर्स्ट जॉब। आज की डेट में वो शायद 1.5 साल भी नहीं रह गया है, बट स्टिल हम करते हैं। हम इसलिए रिक्रूट करते हैं कि हमारे, क्योंकि हम उसके बाद हम कहीं और से रिक्रूट करेंगे, जिसने ट्रेन किया होगा हमारा कोई और करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बेनिफिट द सेक्टर। आज की डेट में बहुत कंपनीज कंटिन्यूइंग एजुकेशन का प्रोग्राम रखती हैं कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए और हम आपको फंड करेंगे। ये मोटिव नहीं है कि वो ज़िंदगी भर रहेगा, बट ये मोटिव है कि ट्रेन होगा तो अल्टीमेटली कंपनी को ही बेनिफिट मिलेगा। आई एग्री देयर कैन बी बजट कंस्ट्रेंट्स, बट ये भी देखा है कि चाहे वो MSME हो या कोई सेक्टर हो, थिंग्स आर चेंजिंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड। बस HR वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है समझाने के लिए कि इसका क्या बेनिफिट है परस्यू करने के लिए। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ को भी ओपन एंडेड होके आना पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइम इन्वेस्टमेंट है। पैसा इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट टाइम इन्वेस्टमेंट भी है। वो बोलते हैं हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं। ये स्ट्रगल भी चलता है, हमारे यहाँ पे भी चलता है कि ट्रेनिंग में बोलते हैं ट्रेनिंग नहीं है, और ट्रेनिंग में बुलाओ तो बोलते हैं हम बिज़ी हैं। बट आई थिंक ये दोनों की तरफ से चलेगा, बट मोर फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव कि लोगों में तो इन्वेस्ट करना ही है अगर कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। So companies can't win if you don't invest in people, and people have to understand the importance of skill development and elevating themselves to the requirements of the changing business scenario. Very important. I hope I am able to answer. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bhavna ji. Next questions from audience. Yeah, Precise રહેજો, બધા એકદમ સંક્ષિપ્તમાં. yeah, મારે ક્રૂર નહીં થવું પડે, જોજો જરા. definitely. We all are talking about the AI. Everybody is showing the strength of the AI. What is the weakness of AI? What I can see that I'm losing my creativity. I'm also using the AI. Most of the people trying to find out the solution without thinking. They just ask the questions, that's it. So we have to take care for what is the weakness of AI? I think this question should be answered by Asmani. માણસોની ક્રિએટિવિટી તમારું રોબોટ ખતમ કરી નાખે છે. Very well asked, sir. Every coin has two sides. Like AI has a positive and strong side. Amna, when Sohilji was telling about availability of things on AI, and also Bhavna ma'am was telling about you can find job descriptions on AI, or you can make policies on AI. I feel it is important that just don't copy paste it. You have to apply. You have to put in yourself. Imitation is not the
solution. After imitation, you have to look at the improvement. How it is relevant in your culture, how is it relevant in the roles or in the job descriptions or in policies, wherever it is. If your touch is missing, it is just a paper. जहाँ સુધી जब तक आपको नहीं पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का रोल और जो एआई में से जनरेट आया हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन एक दूसरे को अलाइन होता है, तब तक वो जॉब डिस्क्रिप्शन इम्प्लीमेंटेशन में ही नहीं जाएगा. एचआर पॉलिसी यहाँ कम लोगों के पास है. आज आप जाके एचआर पॉलिसी एआई से जनरेट करवाएंगे, वो एक जेनरिक पॉलिसी आपको देगा जो शायद आपके बिजनेस के नेचर को, आपके वर्किंग कल्चर को अलाइन नहीं होगा. तो ये एक टूल है, ये आपको हेल्प कर सकता है, पर ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है. उसमें आपको आपका ह्यूमन फैक्टर तो डालना ही पड़ेगा. सो नेगेटिव्स है, लोग सोच नहीं रहे हैं. आई वुड नॉट से दैट. मैं ये कहूँगी लोग सोच रहे हैं पर लोग उस पर रिलाई हो रहे हैं. इट इज़ समथिंग जो आपको बेसिक होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं. जैसे उन्होंने ओपन बुक में एक चीज़ बताई थी कि कितने पेपर्स, कितनी बुक्स आपने पढ़ी है, शायद आपको मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो आपको एक समरी दे रहा है, पर वो समरी को आपके खुद के दिमाग से इस्तेमाल करके आपको अप्लाई करना है. इफ़ यू विल जस्ट गो ब्लाइंडली, तो आपको भी जो रिजल्ट्स चाहिए वो आपके पास नहीं आएंगे. मैडम ये कहना चाहते हैं कि रोबोट को भी आपके ही ऑर्डर की ज़रूरत होती है. अभी कुछ समय पहले मैंने गुलजार साहब को देखा, सुना था, और उन्होंने कहा कि भाई मैं कम से कम एआई का प्रयोग करता हूँ, गूगल का प्रयोग करता हूँ. जो क्रिएटिव लोग हैं वो अपनी मर्यादा भी जानते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई क्या शोभा माइक क्या क्या ये भी माइक आप जो. हाँ Yeah. Yes, it's. Good afternoon. The question is related to compensation, and here there is such kind of a misconception that the policymakers of workplace, known as HRs, are undervalued or underappreciated than other employees of different functions like say marketing, finance, production or operation, IT. So is it true? HRs are more underappreciated employees overall throughout the organization, and even though they are the policy makers. And we have been seeing such a huge package for technocrats, but the hiring by HRs. Why we can't see such a huge packages for HRs? નીરવભાઈને પછી લંચમાં મળીને પૂછજો એમને. हाँ, आंसर फ्रॉम आसमानिया. आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव है. एज एन एचआर आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो हम वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो डिसाइड करेगा कि आपके डिपार्टमेंट में एचआर, आपकी कंपनी में एचआर का क्या वैल्यू होगा. आप अगर उस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे जिस तरह से आप बता रहे टेक्नोक्रेट्स करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भावना जी ने एक पॉइंट रेस किया था कि CHRO, CEO और CHRO, राइट, ये तीन लोग कंपनी के तीन पिलर्स हैं. तो डेफिनेटली दे डिमांड फॉर इक्वल रेम्यूनरेशन, क्योंकि आपने रेम्यूनरेशन का सवाल पूछा. उनका वैल्यू क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर इक्वल होगा तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको उतना ही दे पाएगा. इंसिडेंटली इसका एक और भी पहलू है जो मैं बहुत ऑन एंड ऑफ एवरी डे देखती हूँ. कुछ लोग जो HR में काम करते हैं उनको वही काम करना पसंद है. मल्टीटास्किंग को भी यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. अगर आप उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करने को बोलेंगे, वो नहीं करना चाहते हैं. वो वही काम करना चाहते हैं जिसमें उनका कंफर्ट हो गया, और वो सालों साल उसी ऑर्गेनाइजेशन में वही काम करना चाहते हैं. जैसे हम अगर नेशनलाइज्ड बैंक में जाएंगे, नो ऑफेंस टू एनी जनरेशन, पर जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, दे फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव टू डिजिटल टेक्नोलॉजी. वो लोग
अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक में जाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस करने में डिफ़िकल्टी होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ उस जनरेशन के बैठते थे जिनको कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं आता था। व्हेन दैट जनरेशन गॉट रिटायर्ड, इंडिया में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा आ गया। सो इट इज़ जस्ट दैट कि HR में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है अभी भी मैन्युअली अटेंडेंस रखना, टाइम कीपिंग करना, डिसिप्लिन के लिए सवाल करना, ये तो सही तरीका है। सो दे ऑल्सो हैव टू इवॉल्व के टाइम बदल रहा है, आपको भी आपके तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको भी मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा और आपको ट्रांजैक्शन से ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज हम HR को अब बिजनेस पार्टनर कहते हैं। आपका रोल बिजनेस में कहाँ कंट्रीब्यूट करता है, ये सवाल हमें पूछना चाहिए। अपने आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे और आपको जो रेम्यूनरेशन चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन को देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। According to you, something is missing in learning attitude and upgrading on self. Is it like that? Okay. मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो है अपनी तरक्की का खुद दुश्मन बना बैठा है। सो हम खुद जो है अपने नॉलेज को, अपने स्किल को अंडर वैल्यू करते हैं और हम ही बाधा बनते हैं अपने ग्रोथ की। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं पहले नोटिस के रिप्लाई फ्री में बना के देता था। जिस दिन से मुझे इस बात का एहसास भी हो गया, लोग मुझे अच्छा खासा पेमेंट करते हैं। सो आप अपने आप को अंडर वैल्यू ना कीजिए। आपकी जो स्किल है और आप रखेंगे प्रॉपर एम्प्लॉयर, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, तो डेफिनेटली आपको आपका पूरा जो कंपनसेशन मिलेगा। सोहेल भाई એવું કહે છે કે ક્રિએટ યોર વેલ્યુ, ક્રિએટ યોર ઓન ઇમ્પોર્ટન્સ। એમને માટે મેં જે કહ્યું ને તે મજાક નથી। એમણે પોતે ખૂબ યંગ એજમાં 25 વર્ષના યુવાન હશે નીરવભાઈ, અને આ ઉંમરમાં એમણે જે કંઈ કર્યું છે, શું કર્યું છે, આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। ગુડ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। Good afternoon, Asmani ma'am. If I'm not wrong, you're pursuing your PhD in Bhagavad Gita. I wanted to understand the role of Srimad Bhagavad Gita to align or apply in HR corporate, I mean in a corporate world, especially for HR. Very smart boy. I wanted to cut short you because it is not about Gita, but you very smartly applied that. You answer me, how can we apply Gita into HR? You have saved yourself. Okay. She will reply. I wanted to say thanks to Vishal because he, while giving the introduction of ma'am, Yeah. she put through that she's doing that. So I think we can take advantage of this. હા બિલકુલ એક આખું સેશન રાખશું એમનું। પણ અહીંયા શોર્ટમાં I would say Lord Krishna was the best leader and he is the best HR person you can find. ये कहने का मीनिंग ये है कि उनके जितना स्ट्रैटेजी किसी ने नहीं बनाया था कि कम रिसोर्सेज में किस तरह से ज़्यादा पावरफुल पार्टी को हम हरा सकते हैं। उनका उद्देश्य हराना नहीं था, उनका उद्देश्य राइट चीज़ करना था। सो इन HR हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि राइट क्या है, एम्प्लॉयर राइट है या एम्प्लॉई राइट है। अगर हम ये कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे जिसमें हम अपने बारे में एज एन HR नहीं सोचेंगे। मैंने बहुत जगह पर ये चीज़ देखी है कि द मोमेंट हम HR की पॉलिसी बात करते हैं, लोग फोकस करने लगते हैं, अरे हमें तो इतनी ही छुट्टी मिलेगी। वाई आर यू थिंकिंग एज एन एम्प्लॉई? थिंक एज अ कंपनी ओनर ऑल्सो, तभी आप बिजनेस पार्टनर बनोगे। सो अगर मुझे गीता से आपको HR के लिए एक प्रिंसिपल देना है तो वो ये देना है कि उन्होंने जो भी प्लान किया, जो भी स्ट्रैटेजी की, उसमें उन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए जो जिनको जिताना था और जो गलत थे उसमें सही के हिसाब से काम किया था। सो एज एन HR आपका भी ये बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है उसमें से। बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि किसी को हराना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। पहले वाले सवाल में एक मैंने ऐड करना था, जब विशाल जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तब उन्होंने बोला था कि आपको भी ऐसा इंट्रोडक्शन मिलके आप भी स्टेज पे आए, ऐसी आप इच्छा रखते होंगे, राइट। हम नीरव मंदिर के बारे में कब से बात कर रहे हैं। देर आर थिंग्स विच सक्सेसफुल पीपल जितने भी यहाँ डायस पे बैठे हैं और ऑफ डायस है, उनमें एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने लर्निंग की जर्नी कभी बंद नहीं की, राइट। दे केप्ट एडिंग डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स और लर्निंग और ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से। आप अगर वो करेंगे
तो you also deserve to be coming here and talking to people like us. If I ask myself, or if we ask ourselves, how many books I have read, how many books I am reading right now, how many times I am spending to listen others, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारा लर्निंग एटीट्यूड हमें बताती है. अगर हमको आगे बढ़ना है, किसी और से हमको ये प्रेरणा लेनी है, अगर हम उनको पूछेंगे, मैंने इसीलिए कहा कि हम लंच के दौरान बात कर सकते हैं कि आपने ये करने के लिए क्या किया था, क्या हमने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Can we use AI as a macro level in the sense of data collection? For example, data collection is very tedious job. So we have to use AI as a macro level, means government itself has to provide the data of the employee. We need not task him. You will just enter his particular identity, all the data should be available, subject to his permission. So that this tedious job, so I have to think that HR not only work in micro level, it has to work on macro level also, in the broader sense. Not on concentrating its own organization, it has to concentration over and above the micro level. What you suggest about this? I think Pooja should reply this question. For a change, even saru rehne thodo. I think we are going very strong, at macro level also as a country. I think this whole Aadhaar card, what was that app, Setu? After COVID we had Arogya Setu. I think there is one more app government is working on, is about your health parameters. So all the blood work which you get, you will get on your government app. What is your B12, what is your HB, etc. And basis that, they will also have pool of doctors who will support. So I think bang on, as a nation, if we move in a direction to leverage the data in a country as large as India, I think that will give us many, many insights, for the next league of our development. And I think we are going in that direction. But great point. And how do we contribute to this journey as citizen also should be at top of our mind. Yeah. ભૂખ લાગી હોય તો છેલ્લા 4 સવાલ લઈએ અને નહીં લાગી હોય તો થોડા વધારે લઈએ. ઓકે, યા ફોર અ ચેન્જ એક દીકરીના હાથમાં માઇક્રોફોન છે. પ્લીઝ ગો હેડ. Good afternoon. We are a celebrated brand in Surat. We are running for 40 years, and with that 40 years, we are very grateful for the loyalty of our team. People have been working with us for over 20 years, but with that, there's a sense of rigidity and stubbornness to accepting change. So when we introduce new policies, KRA, KPIs, how do we bridge that rigidity, and how do we bridge that the team is able to come out of their comfort zone? મારા વિશે બી કંઈક બોલજો. અમારા બધા બ્રેડ બટર આમાંથી જ આવે છે. આ ચિરાગ બી સામે બેઠો છે. Thank you. Can I know your name? My name is Nishtha Modi. Thank you, Nishtha, for asking that question. I think Name of your organization. You are coming from which organization? From Dheeraj Sons, the mega store. ઓળખું છું ને, બરાબર. Yeah, I think at each stage when we face, such changes, these challenges are normal. So I think where should we start from is accepting that when we have a very rooted legacy of an organization, and when we go towards change, these things are going to happen. What I have seen working, in my previous organization, so I started my career with Birla Copper, if any of you know. So I was there at plant for 5 years, then I moved to a corporate office. And I have seen in any change situation, first, your deeper understanding of change is extremely critical. Making people understand why do we need to change.
there has to be a purpose, right? If we say that, okay, now the world is talking about AI, we will also start talking about AI, it doesn't happen like that. I think for people to find an objective, to find a purpose, to make certain behavior or processes change is very critical. So I think first is communication. Second is making a strategic plan and working on the culture change as well. Very famous saying, many of you might have heard, culture eats strategy for breakfast, right? However strong is your strategy if the culture is not set right. So for the new change, what is the culture you want to set, right? Point number 2. Point number 3 is in any organization, in any family also you might have seen, though there are traditional families, there are few people who have modern thoughts, right? I would say they have progressive thoughts and they are more open to change. In an organization also you will find such people. कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो change के लिए ready है. Leverage them, right? Put them in front. छोटा शुरू करो, उनके डिपार्टमेंट में चेंज शुरू करो and see how that change is working. Let other 5 people see how they are adding value. And if they are adding value, recognize them, right? Help them scale that change to a larger organization. And also train, closely work with people. Try to influence people at a mass. Once you have your initial, wins in few departments, etc. So I think that's how mostly the changes are successful. मेरा एक ये बात है कि क्या यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एन आउटसाइडर who is not in the organization, an outsider, a trainer, can make it possible to bring change in the organization and work on behavior and attitude of your people? Can they do any one of you, anyone from panel can answer this. शायद हम जिन ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ की बातें हम जानते हैं और एक परसेप्शन बना हुआ है. वहाँ पे क्या आउटसाइडर बाहर से कोई ट्रेनर आके कोई फर्क ला सकता है? नहीं, 100% ला सकता है, बट व्हाट शी इज सेइंग, आई एग्री विद हर दैट इंटरनल टीम coupled with external facilitator, because क्या होता है कि कई बार जो इंटरनल टीम है वो हमारी बात सुन के मतलब दे आर यूज्ड टू इट. जैसे घर में होता है ना, मदर को सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट फादर आते हैं तो सुनते हैं. तो यहाँ पे हो जाता है कि चलो आपने बोल दिया बट एक पर्सपेक्टिव आ गया, और एक पर्सपेक्टिव की एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वरना वो जनरली एक थॉट होता है कि आप भी तो 5 साल से यहीं हो. सो ये है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पार्टनर डील. So alone external person cannot do anything, so it has to be in collaboration with the internal team. But yes, definitely change will happen. Nishtha, is this fine? Are you happy? Where are you, Nishtha? Okay. Happy? Okay. Next. માઇક ચાલુ રાખીને જ આપો ભાઈ. હવે એમની પાસે છે, બોલવા દો એમને. ભાઈ બોલવા દો. My name is Kamlesh Goswami. हम लोग जो है वो अटेंडेंस सॉफ्टवेयर बनाते हैं. जैसे अभी आसमानी जी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो अभी अटेंडेंस का जो HR का मतलब जो मेन ये रहता है इंडस्ट्रीज में, तो हम लोग जो है वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं. जैसे अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, पेरोल है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है. सवाल पर आओ. हाँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि अटेंडेंस में अभी हम लोग जो क्लाउड में कर रहे हैं, लोगों को HR फैटर्निटी को पता ही नहीं है कि जो काम उन लोगों को करना नहीं वो लोग कर रहे हैं. जैसे मतलब मान लो कि बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से उन लोगों को लीव मैनेजमेंट है, फिर बोल सकते हैं कि ओवर टाइम है, वो मैन्युअली डालना पड़ता है एवरी मंथ. उसको हम पूछते हैं सेमिनार में कि 15 दिन 10 दिन पहले लोग शुरू कर देते हैं पेरोल बनाने के लिए, 1 to 15, 15 to 31 ऐसा करके. सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल यही है कि कैसे मतलब उन लोगों के पास हम लोग ये जो हमारा अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है वो कैसे पहुंचाए. वो मार्केटिंग का सवाल है. नहीं मतलब ये उसने मैडम ने बोला ना कि मतलब वो कैसे मतलब ये अटेंडेंस का कैसे मतलब ऑटोमाइज करते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है. ऐसा है तो क्या करें? आपको તમારે જવાબ આપો તો આપો, નહીં તો એને માર્કેટિંગનો જવાબ તો એને 12 મળશે તો આપી દઈશ. आपकी बात सही है, और आपको ऐसे कॉन्क्लेव्स में आके आपके प्रोडक्ट
का लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। वही बोला था मुनाल सर ने, वही बोला था ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लेकिन मतलब हम कनेक्ट नहीं थैंक यू। नेक्स्ट वन હવે છેલ્લા બે સવાલ। Hello, my name is He Jariwala from Oro University, and I read this news which says Meta laid off 4,000 employees last week. It's not just for cost cutting but to shift more budget into AI. So how is AI changing job in big tech companies? सो थोड़ी देर पहले जो बात हमने की थी कि सोशल मीडिया एनालिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं था, जो आज है। सो जैसे एआई टेक्नोलॉजी आएगी उसी के रिलेवेंट जॉब्स भी आएंगे विच आर नॉट अ रूटीन जॉब आज के दिन में है। एंड दैट्स वाई वी आर ऑल्सो इंसिस्टिंग कि हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना चाहिए। ट्रेंड्स के हिसाब से क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। हेलो, मैं चिराग व्यास, अमी ऑर्गेनिक लिमिटेड से। मैं आसमानी जी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि गोल्डी सोलार है 2011 से अभी तक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करके एक बेंचमार्क बन चुकी है, उनके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रेस के जो ईयर्स एंड ईयर्स आपने बिताए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की बहुत सारी चैलेंजेस भी आई होगी और परमानेंट एम्प्लॉय की भी होगी, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में बिजनेस को सेटअप करना, जैसे कस्टमर को भी संकोच होता है कि प्रोडक्ट क्यों ले, कैसे ले, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना एज ए एम्प्लॉई, तो आपको क्या क्या चैलेंज आई थी? खास करके कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। એક તમારો સવાલ સમજાઈ ગયો, એક નાનકડો સુધારો કરું। આ જે વાત છે ને તેને લેબર લો અને કમ્પ્લાયન્સ સાથે નિસ્બત છે, એટલે હું આ વાત આસમાનીજી ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, હા તમારે એડ કરવું હોય તો પછી કરજો તમે સાહેબ। આ એક બહુ મોટો મુદ્દો છે સોહેલભાઈ કે કોન્ટ્રાક્ટ પર માણસો રાખવા, અને ઘણીવાર એચઆરના કન્સલ્ટન્ટ પણ આવી સલાહ આપે છે કે તમે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર માણસ રાખો એટલે તમે આટલામાંથી તમે બાકાત થઈ જશો। એનો જવાબ તમે આપો અને એ સાચો જવાબ આપજો, એટલે એમાં કોઈની ફેવર કરવાનો મુદ્દો નથી। પ્લીઝ सोहेल जी, एक पॉइंट आपके लिए एक और ऐड करना चाहूँगा। उमेरता नहीं हो भाई, एक लास्ट सर, एक लास्ट। ये जो PSUs है, PSU अभी उसमें भी नया ट्रेंड आ चुका है। लेबर लो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, उसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का एक ट्रेंड आ रहा है, जैसे 11 महीने, 21 महीने या फिक्स टर्म कुछ भी बड़ी क्वांटिटी ने, तो ये ट्रेंड भी अभी ये पहला सवाल में सवाल તમારો છે, પહેલા સવાલમાં જ હતો, એનો જવાબ આપે જ છે। ओके सर। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, खास करके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को अपकमिंग लेबर कोड में एक पर्टिकुलर कैटेगरी दी गई है, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा था पूरी कंट्री में। आपने देखा होगा आधार कार्ड्स जो हमारे बनाने वाली एजेंसीज़ है या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम देखें तो 11 महीने 24 महीने उनको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे रख के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाता है। पर्पस बिहाइंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इज़ ओनली to not continue them whenever company doesn't have any contract or company doesn't have any work। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ में देखेंगे तो आपको उनको सारे ऐसे बेनिफिट्स देने होंगे, जैसे गोल्डी सोलार की आपने बात की, या ऐसी कोई भी कंपनी दे दे जो कंपनी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग करना चाहे या कुछ इंसेंटिवाइज डिक्लेयर करना चाहे तो उन्हें हर किसी के साथ करना होगा, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल में करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी स्पीच में सुबह भी बताया कि एक कंपनी जो बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही थी और कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि नहीं अब हमको परमानेंट स्टेटस दीजिए। सी कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम इसलिए होता है कि मैं चाहूँगा 11 महीने के बाद मुझे उसे डिसकंटिन्यू करना है, मैं कर सकता हूँ। और आप शायद मालूम होगा कि नहीं, जो मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जो कंपनी की कोर एक्टिविटीज़ है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो है वो एबॉलिश करने के पावर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को है। तो अगर कोई एक्टिविटीज़ ऐसी है, जैसे अभी हमारे सूरत में डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत सारे हैं, तो डाइंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग वर्कर्स में उसमें जितने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स पहले काफ़ी समय उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, वहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी वो अबॉलिश है। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम से बेनिफिट यही है कि आप किसी को बिना
बिना आप उनको रखे आप उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उससे अच्छी मुझे एजेंसी मिल रही है तो आप इजीली कर सकते हैं, नई एजेंसी को आप लेके आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली तो वर्क परफॉर्मेंस पे ही सारा खेल है, और इसीलिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल चुना जाता है बड़ी कंपनीज द्वारा भी। सर आसमानी और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ओके। और ख़ास करके जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रखें तो उनके कंप्लायंसेस आप पूरे के पूरे एश्योर करें, बिकॉज बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी व्हेन एवर पीएफ और ईएसआई इंस्पेक्शन कम्स। और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस लेने से फ़ायदा यह है कि जब भी वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की इंक्वायरी या कंप्लेन आती है तो कॉन्ट्रैक्टर આન્સરેબલ હોતા હૈ। સોહેલભાઈ, બહુ મોટું મિથ એ છે કે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લેબર તમારે ત્યાં હોય, માણસો તમારે ત્યાં હોય તો એને કેટલાક બેનિફિટ પાસ ઓન નહીં કરવાના હોય, તો અને આવું કેટલા વખત, એટલે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ કેટલા વખત સુધી એ કોન્ટ્રાક્ટ હોઈ શકે અને પછી કંઈ કન્વર્ટ થતું હોય કે આખી જિંદગી પેલો કોન્ટ્રાક્ટ પર જ કામ કર્યા કરે, એમ મોટે ભાગે મિથ આ છે। कंटिन्यूसली अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी बंदे को रख रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला कि कोर एक्टिविटी में आपने रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन पब्लिक डोमेन में बहुत सारे केसेस चलते हैं, तो सफाई कामदार बार बार वो परमानेंसी के लिए अपना दावा करते हैं। सी होता क्या है कि क्यों ना वो परमानेंट हो, और उसका स्टेटस अल्टीमेटली कोर्ट नक्की करता है। इसलिए भी कॉन्ट्रैक्टर को आपको कंटिन्यू नहीं रखना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर्स को चेंज करना है, अदरवाइज वो परमानेंट स्टेटस को आपके पास क्लेम करेंगे, और परमानेंट स्टेटस के बाद सारी चीज़ें आ जाएंगी अगेन कि पुराने वो एक ही कंपनी में इतने साल से है, उनको पुराना ग्रेच्युटी दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, लीव एनकैशमेंट नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, उनका रिट्रेंचमेंट दीजिए, ले ओवर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लेम अलग से होती है, और फिर ये लिटिगेशन सालों साल चलती है और हाईकोर्ट तक मामला जब पहुँचते हैं। इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समझना भी पड़ेगा और फिर उस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे अभी बताया कि AI टूल है तो हमने कोई भी एग्रीमेंट बना लिया, हमें अपना ह्यूमन टच भी देना है और एक सर्विस कंडीशन भी साथ में એડ ઓન કરની છે। કોન્ટ્રાક્ટનો માણસ છે ને એ પોતે સાવકો છે એવું એને લાગે, એનું બિલોંગિંગનેસ જે આવવું જોઈએ ને એ ન આવે। ટૂંકમાં તમે એવું કહેવા માંગો છો કે હ્યુમન ટચ જે બાકીના ન આવે એનો કદાચ ન આવે। છેલ્લો સવાલ કેયુરભાઈનો। હા, મારો ક્વેશ્ચન છે આસમાની મેમ માટે। સૌથી પહેલાં તો બધા પેનલ સ્પીકર્સ માટે થેન્ક યુ। તમે નક્કી નહીં કરી નાખો, યસ, ઓકે ફાઇન। મારો ક્વેશ્ચન એ છે, જે અત્યારે ડેટા एनालिटिक्स में काम करिए છીએ, गुजराती इज़ ओके राइट, हिंदी में बता देता हूँ। डेटा एनालिटिक्स के अंदर जब हम काम करते हैं मैम, तो हमें ये चीज़ पता चलती है फ्रॉम द डेटा दैट कहाँ पे क्या क्या पॉलिसी एक्शंस की ज़रूरत है। पर मैम दो चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, HRMS और HRIS को रन करने के लिए जो पर्सन चाहिए, जो HR मैनेजर है, वो खुद वो HR की सिस्टम्स को इतने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट या सीख नहीं पा रहा है। सेकेंड थिंग इज कॉस्ट इज कमिंग इन टू पिक्चर ऑफ HRMS, इट्स नॉट दैट ईजी एंड नॉट कॉस्ट फ्रेंडली थिंग। तो ये सब एंगल से HR के MS का इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और डेटा जब हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ करनी है तो एम्प्लॉयज़ आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ अस। सो फॉर एग्जांपल KRA KPI से हमें डेटा से हमें ये पता चला कि हमारी कंपनी के अंदर ये पॉलिसी की ज़रूरत है, बट एम्प्लॉयज़ आर नॉट कोऑपरेटिंग। तो सारी मेहनत, सारा कॉस्ट, सारा कन्विंसिंग मैनेजमेंट गोज इन टू वेन, एंड दैट इज़ नॉट कन्वर्टिंग टू द रिजल्ट ऑफ द कंपनी। आसमानी, सो आई वॉन्ट योर सजेशन इन दैट वे कि हाउ कैन दैट philosophy be changed for the company? I hope my question is clear. आई थिंक ये सवाल थोड़ी देर पहले जो पूजा ने पूछा था और मैडम ने बताया था, आई विल कम बैक विद अ सिमिलर सोल्यूशन कि आपको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़, अगर एम्प्लॉय से बाइंग नहीं है, इसका मतलब उनको पता ही नहीं आप ये कर क्यों रहे हो। यू विल हैव टू एक्सप्लेन देम कि इससे उनकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी, उनको ये करने से क्या बेनिफिट होगा। आज उनको अनफॉर्चुनेटली वी आर इन एन एरा वेयर पीपल वांट टू नो व्हाट इज इन फॉर मी। व्हेन वी ऑल्सो डू कम्युनिटी वर्क, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इसका मेंबर बन के मुझे क्या फ़ायदा होगा, राइट? सो यू आर कमिंग हियर फॉर कम्युनिटी वर्क, बट दिस इज़ द जनरेशन वी आर लिविंग इन। तो आपको आपके एम्प्लॉय को समझवाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर हिम और हर, तो उनका बाइंग आ जाएगा, उनको पर्पस पता चल जाएगा, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन हाफ डन हो जाएगा। एज़ फार एज आपके टीम में, इनसाइड टीम टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो आप कह रहे हैं, डेटा पे काम करना है, एनालिसिस करना है, तो वाई नॉट हायर अ डेटा एनालिस्ट फॉर HR डिपार्टमेंट। हम डेटा एनालिस्ट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए लेते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट के लिए ले जो इस चीज़ पे टेक्निकली काम कर सकेगा।
पर मैम डायग्नोस तो हो जाता है डेटा एनालिटिक्स से, पर वो करेक्टिव भी तो होना चाहिए। वो बाइंग वाला जो आपने आंसर बताया तो दैट वहाँ इज तो आपका ही रोल है, यू आर दी HR एक्सपर्ट। उसका सोल्यूशन क्या है ये तो आपको ही बना के मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि ये हमारे डेटा की फाइंडिंग्स है, इसके सामने हमारा ये रेकमेंडेड सोल्यूशन है एंड वी नीड मैनेजमेंट टू हेल्प अस कि हम इसको जाके इम्प्लीमेंट करें। ओके फाइन, बिकॉज यू आर दी एक्सपर्ट। आर यू हैप्पी? या मे बी आई विल टॉक इन द लंच टाइम। मारो आटलो બધો ધાક કેમ છે? હું તો કંઈ કરતો તો છું નહીં। सो आखिर में हाँ अभी आपके सामने ही आ रहा हूँ, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो यहाँ से जाने से पहले उनको ये लगना चाहिए कि हमने हमारी तरफ से सब कुछ दे दिया है, और हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों को भी यहाँ से जाने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमने यहाँ से जो लिया है, जो दिया गया है, जो लिया है, इनमें से एटलीस्ट एक बात तो ऐसी होगी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो एक बात इनके लिए क्या हो सकती है? सिर्फ एक बात संक्षिप्त में हमारे हर एक पैनलिस्ट अपनी एक ही पॉइंट बताएंगे बारी बारी से। जी कोई बात नहीं, भावना जी आप शुरू करिए। Hello. I'll say one thing only. Be open to learn, evolve, adapt, perform, or be ready to perish. Wonderful, wonderful, wonderful. Into inverted. भावना। लेबर लॉ कंप्लायंसेस आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा दुविधाजनक ना बने या बर्डनफुल ना बने, इसलिए आज ही 10 और 20 एम्प्लॉयज़ अगर आपकी कंपनी में है या जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ एटलीस्ट सेल्फ एसेस कर लीजिए, कुछ रिकॉर्ड्स बना लीजिए और कंप्लायंसेस की चैनल में आ जाइए, बिकॉज आने वाले दिनों में लेबर कोड बहुत जल्दी आ रहा है। और आप देख रहे हैं GST, बैंकिंग मर्जर, सारी बैलेंस शीट्स वगैरह का एक्सेस ऑनलाइन है। छोटे जॉब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे छोटी छोटी ऑफिसेस हो, कंप्लायंसेस में जितना आओगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो मैं यही टेक अवे, मेजर टेक अवे दूंगा HRs को कि मैडम ने कहा जैसे सीखिए और साथ में आप ये कंप्लायंसेस में भी इन्वॉल्व होइए। थैंक यू सोहेल भाई। आज हम लोग यहाँ जिस थीम से इकट्ठा हुए हैं कि हाउ बिजनेस कैन अफेक्ट हाउ HR कैन अफेक्ट बिजनेस, आई थिंक इसी पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि HR बिजनेस को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके लिए आपको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारे डिपार्टमेंट से हम क्या ऐसा करेंगे जिससे बिजनेस को बेनिफिट होगा। हाउ विल यू क्रिएट वैल्यू in business so that business will value you. वंडरफुल 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 मैसेज। वैल्यू एडिशन आपकी तरफ से कितना बड़ा हो सकता है? जी I think personally all of us should have a goal कि इस साल क्या नया करना है, and every week Saturday or Friday whatever is your last working day, ask yourself कि क्या मैंने कंट्रीब्यूट किया इस हफ्ते जो मुझे अचीव करना है। या थैंक यू सो वेरी मच, वंडरफुल पैनल। पूजा जी, भावना जी, सोहेल जी एंड आसमानी सुरवे जी एंड अ वंडरफुल ऑडियंस। તમે સવાલો તો જમવાનું બાકી રાખીને પૂછ્યા કરો એમ છો, પણ મને તો ભૂખ લાગે ને। સો વી કન્ક્લુડ ધીસ પેનલ ડિસ્કશન ઓવર હિયર એન્ડ right now I invite Vishal Shah to give his remarks, final remarks. Thank you everyone. થેન્ક યુ મૃણાલભાઈ। આજે અશ્વિનીજી આસમાનીજી વધારે લાઇમલાઇટમાં હતા કારણ કે સૌથી વધારે સવાલો એમને જ પૂછવામાં આવેલા હતા, અને આઈ વોઝ વેઇટિંગ ફોર મૃણાલભાઈ ટુ ગીવ ધ માઇક કારણ કે મારું બી બે થોટ પ્રોસેસ આપવાની તાલાવેલી लागेली હતી। થેન્ક યુ મૃણાલભાઈ। સોરી, આઈ વિલ કમ ઇન ટુ ધ હિન્દી અગેન। આશિષભાઈ ગુજરાતી, past president recognition. We recognize the presence of Ashish Bhai Gujarati, past president of SGCCI, sir. So again coming to the part of Asmani survey,
So everyone, maximum have asked the questions to Asmani ji only. Even the moderator, Mrunal Bhai again was going towards Asmani ji and coming back to Pooja. Right, sir? So, તમારે જે એટેન્ડન્સ સોફ્ટવેર વાળા ભાઈ તમારા માટેનો એક જ આન્સર એ છે કે માર્કેટિંગનો સવાલ હતો તો યુ નીડ ટુ કનેક્ટ વિથ મૃણાલ શુક્લા એન્ડ ચિરાગ દેસાઈ ઇન ધ લંચ they are the perfect person to give the right solution. Thank you. So today the focus was major on the AI, right? Artificial intelligence. Okay. So हम ये कहना चाहेंगे कि AI is never going to replace you. Mind it, AI is never going to replace you. The person who is knowing AI is going to replace you. ये आप ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज. एंड लास्ट में सब लोग सोच रहे होंगे, सबको क्वेश्चंस थे कि पैनलिस्ट तो ये है, तो ये भाई साहब यहाँ पे बैठ के कर क्या रहे थे. सो वो कहते हैं कि ग्रे बालों वालों को लास्ट में बुलाया जाता है, पर ये भी सच है कि शो स्टॉपर भी लास्ट में ही आते हैं. सो लास्ट लाइन फ्रॉम माय साइड કે તમારા સાથથી જગમગાયું આજે મંચ છે, તમારા સાથથી જગમગાયું આજે આ મંચ છે. આભાર માનવું મારું આ કર્તવ્ય પવિત્ર છે. સો થેન્ક યુ ઈચ એન્ડ એવરીવન ફોર બીઇંગ ધ વન્ડરફુલ ઓડિયન્સ ઇન ધીસ 8th National HR Conclave. Thank you everyone and over to everyone for the lunch. Thank you.